evening. YouTube लाइव भी है क्या? ओ, बैठ के पढ़ाऊं या खड़ा? चलो ओके। It has to be it is supposed to be a formal interaction with the new students who are likely to join from 27th. The last batch has not been completed, and I may take few extra days for completion. So from 27th, the likelihood of starting the batch looks like a distant reality, because the next batch can be delayed by 2 to 3 days. कोई problem? हाँ, तो instead of 27th, you can keep in your head that the fresh batch could be started on 1st November. So I'm taking some 3-4 extra days with my old batch. That is one. Then second, this is a very festive season, and जो tendency है, the students' idea of joining a batch and coming to Delhi is generally after Deepavali, and for some it could be Chhath Puja also. नहीं? So we will start on 1st, that is the promised date. But then after 7-8 days, I think we'll have to take a break of 5 days, because Deepavali comes and Delhi is under severe pollution, traffic congestion. Even I want to flee away from this tyrannic city. Even though the city has given me everything, money, wealth, name, fame, everything, I owe a lot to this city, but still I will be on a run. So people know me, who have been my student previously, that I always have been honest to my students, my beloved ones. So there is no agenda to hide anything from you. Batch will be started from 27th. Oh, not 27th. From 1st November. I'm taking 3 days extra for it. And then on 7th or 8th, Deepavali कब है? 12th है ना? So maybe on 10th I can continue. Even you deserve a good Deepavali holiday, or not? The institutions will be closed for 2-3 days. I will have some additional 2 more days. After Deepavali भी मैं 2 दिन extra लूँगा, because for last 45 days I have no breaks. I am tired, physically tired, not mentally. और मुझे भी ब्रेक चाहिए to come back again with new force, reinventing myself as a teacher, relocating my potential to teach and train you. So this is how the course will begin. Few more things. I start with physical geography. Then I give opportunity to some students to join from human geography also. क्योंकि physical geography and human geography are 2 compartments. They are somewhat interrelated, but दोनों अलग चीज है, more or less. So we will be starting with physical geography, and I start with oceanography.
Now question is why I start with oceanography. The simple reason is ये फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे इजी पार्ट है और इसमें चैलेंजेस बहुत ही कम है. अब इमेजिन करो आई स्टार्ट विथ जियोमॉर्फोलॉजी and then we have started learning the principles of geology. So the first chapter is on evolution of earth and we are talking about geochemistry of the earth. सब भाग जाओगे तो फायदा नहीं है ना. इसलिए you have to go by my plan and my idea of geography. मुझे इंट्रोड्यूस तो नहीं करना था ना अपने आप को. अच्छा नहीं करना चाहिए था मुझे. हाय दिस इज आलोक रंजन. आई थिंक आई एम यूट्यूब लाइव चल रहा है ना. ओके आई एम ए वेरी नॉन सीरियस अनप्रोफेशनल टीचर. माई स्टूडेंट्स some of them love me for this and some really hate me for this also. But what is the outcome is more important. What is significant is the outcome. Or what is my theory of teaching is in a very cool and calm environment, in a very friendly condition, not hyping myself as a teacher and projecting myself as, oh, I am the biggest scholar and attitude. मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था कभी. So I try to be rooted and grounded and want you to learn. As the day progresses, we keep on adding new ideas, new facts. Then I must tell you in the beginning itself that I am a very vociferous speaker on different issues. And people really hate me for that. And some females are in the hostels, they are bombarding me with, अरे यार उसको क्या ज्योग्राफी आती है, क्या पढ़ाएगा वो, क्या वो लिखवाता है. हाँ मैं लिखवाता हूं तो whatever geography you have in your syllabus, I explain everything. I want you to learn them in the language of geography and then I want you to write also. So all your class notes should be prepared in the class itself. This is how they are called, class notes. So everything in the syllabus will be done in the class, nothing will be left on you. You can ask my old batches. You have the syllabus, topic 1. So that will be explained, this is the mechanism of teaching, and then you have to prepare every notes on it in the class itself. So my classes are all about explanations and learning plus discussions plus writing also. Because I never trust my students, I never found them very capable or more capable than me, myself. तो हमसे अच्छा तो नहीं लिख सकते हो ना यार. तो क्लास में लिखना है, नोट्स तैयार करना है. Because I strongly believe, again I am saying that whatever you write, it belongs to you. The moment you write something, it goes to you. There is a book in psychology, The Power of Mind. You know, in that book it writes that if you have tens of problems in your life, write all those problems. सब problem को लिखो, list करो. 70% of your problems are resolved. The moment you write, problems are resolved. ये psychology कह रहा है. So take every topic as a problem. So when you write on every topic in detail, your 80% fear is off. नहीं? So I have great intention when I dictate in the class. I have experience also. पिछला जो मेंस हुआ ना, सारा क्वेश्चन मेरे नोट से आया है. बोले मुझे शर्म आ रही है, लेकिन ये सच है. और आगे भी क्वेश्चंस नोट से ही आएगा, बाहर से नहीं आता है. क्योंकि यूपीएससी इज नॉट अबाउट टॉपिक्स दिस डेज. दे विल नॉट आस्क यू व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. देयर आर सब टॉपिक्स. देयर आर टॉपिक्स बिटवीन द लाइन्स. देयर आर इवन माइक्रो टॉपिक्स. नहीं तो वी हैव टू गो स्टेप वाइज.
backward and forward linkages of the syllabus has to be identified, and that only an academician can do, and thanks heavens I'm an academician. I'm not teaching geography because I have learned it from Savinder Singh. भाई साहब मैं प्रॉपर MSc ज्योग्राफी आदमी हूँ, तो मुझे पता है कि एक प्रोफेसर कैसे सोचते हैं, और I was really blessed to be part of Hindu College, then to Chennai MSc Geography. So I owe a great deal to the great professors of this country. This is how I want you to read some good books also. Good books matlab Rupa Made Simple. That is the only good book in my dictionary. बाकी तो हम ही बुक हैं, आप हम ही से सब लो, अच्छा है, ये मेरा घमंड नहीं है, एक्सपीरियंस है. तो आई विल बी स्टार्टिंग विथ ओशनोग्राफी, एंड देन वी विल हैव दीपावली ब्रेक, एंड देन इट विल गो फियर्स, विल गो रियली क्या फार एंड वाइड विथ द सिलेबस. Now I have three important things to share with you. So anyone listening online, offline, you have generally three queries. Coming to the point now. Geography has got bad name in the arena of UPSC preparation. Bad name. Why I'm saying bad name? Because everyone is talking about this subject having vast syllabus. बहुत बड़ा सिलेबस है सर. Then questions are, I don't know from where they are being asked. Questions कहाँ से आता है पता नहीं चल रहा है. Then mostly they are questioning how much you can score, what are the ranks. Now all I can tell you that when I was teaching from 2008 to 15, always you will have 2 in top 5. You can go and check the history of geography results. In 2015, I took a decision not to teach. मैं back out कर गया from Karol Bagh, and reasons were very personal, जो मैं publicly नहीं बताना चाहूँगा. तो मैं बैकआउट कर गया, और अदर्स टुक ओवर. बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं, हम सब महान लोग हैं, किसी के लिए हम कुछ कह नहीं रहे हैं, बट ज्योग्राफी के रिजल्ट का पूरा रिवर्सल हो गया, और रेपुटेशन ज्योग्राफी का बहुत डाउनवर्ड गया है. सो व्हेन आई केम बैक, आई वांटेड टू रीस्टार्ट इन माय इंस्टीट्यूशन. अपने इंस्टीट्यूट में मैंने शुरू करना चाहा, तो somehow I got to interact with next IAS MD sir, and I was impressed with the infrastructure. I immediately said yes. So without the headache of management, you were getting such a nice place and all this bunch of beautiful staff structure, why not to join and restart? तो मैंने restart किया. This is the current batch is my 4th batch in 2 years. या 3rd batch है. I think 3rd batch. You will be my 4th batch. I'm expecting the revival of geography after 2 years, because nothing happened in a year or two. But this year, a lot of students have written their mains. Geography has helped them in PT. They qualified, some of them. And they are writing mains. I'm hopeful, but after 2 years I will love to see again those kind of results in geography, and I'm working hard for it, and I'm covering 1000 marks. 500 is geography plus all the GS जो geography के peripheral part पे हैं. So I'm trying to cover it all. You can see the booklet which have been given to the old students. पता नहीं क्या होगा,
रिजल्ट्स तो तुम्हारे मेरिट, आपके मेरिट पे है ना, कि आप कैसा हार्ड वर्क कर रहे हो. इट्स नॉट ए वन साइडेड गेम दैट मेरे से क्या होगा. until you deliver, I'm working hard. The three things I wanted to point out. A, geography is not voluminous. Syllabus is as good as हिंदी साहित्य. मजाक नहीं कर रहे हैं. उतना ही छोटा सिलेबस है ज्योग्राफी का जितना बाकी ऑप्शनल का है. क्या यूपीएससी ऐसा कर सकती है? गिव इट ए थॉट, गिव इट ए जनरस थॉट दैट विल यूपीएससी डिजाइन सिलेबस विथ एन आइडिया दैट ज्योग्राफी बड़ा करो, ये छोटा करो, ये बड़ा करो, ये छोटा करो. ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज वेरी इलॉजिकल. सो if some teacher or some great teachers are able to complete their optional in 4 months, I'm equally taking 120 days. That's 4 months. मुझे भी तो वही टाइम लग रहा है. I'm taking the same quantum of time. I'm not taking even 5 days extra for the completion. तो यार सिलेबस कैसे बड़ा है ये मुझे समझ में नहीं आया. Why this rumor is taken up everywhere in the market. My students are telling me, sir, since I have taken geography, so my roommate is cursing me day and night कि अबे तूने क्या कर लिया. ये कैसे हो रहा है यार, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं. The mother of all subject facing humiliation in Karolwag. The subject which holds a record for having highest marks ever and having the highest number of results by any optional in the history of UPSC, and that is on the website of UPSC. You can go and check. पता नहीं क्यों rumor हो गया ये. It's not voluminous. Now सुनो, if anyone is going to argue, फोटो ले रहे हो क्या? बता देना थोड़ा. रुको, टाइट होने दो, पेट अंदर, एंड लीनिंग, वेट. डन. थैंक यू. नौटंकी हैं हम पूरे. चलो ओके. देखो, if syllabus is voluminous for someone, what is that extra volume? That extra volume is environment. That extra volume is resource. That extra volume is agriculture or industry or trade and transport or regional planning or geopolitics or contemporary issues. तो ये extra volume है या they are all related to the GS paper? फिर I don't know why. मान लो कि there is a optional which has 20 topics extra and those extra topics are irrelevant for rest of the civil services. They are irrelevant. So if the topics are irrelevant, then we can say हाँ extra syllabus. But all the topics of geography have complete relevancy for your GS. And I will invite you to look into the paper 3 of your GS this year. Questions on cropping pattern, questions on disaster management, questions even on economic development. They're all related with geography. देखो, geography का domain fixed नहीं है. It overlaps with economy, it overlaps with environmental sciences, it overlaps with agriculture, it overlaps with even commerce, geology, meteorology, मैरीन साइंसेस, बायोलॉजी, ये सब में ओवरलैप कर रहा है. तो ये बहुत ही बेनिफिटिंग सब्जेक्ट है फॉर यूपीएससी. वॉल्यूमनस नहीं है. फॉर हेवन सेक, इफ समवन इज मिसगाइडिंग यू, आवर कंप्लीशन ऑफ द बैच
is similar to the other subjects, और सबको पता है कि हम बड़े आराम से पढ़ाते हैं, भाषण देते हुए हंसते मुस्कुराते, और सफिशिएंट टाइम होता है 120 डेज का। सेकेंड थिंग, एक तो वॉल्यूमनेस नहीं है ना। हाँ, कोई बोले बहुत वॉल्यूम है, बोलो भाई साहब जितना ज्यादा वॉल्यूम है वो हम जीएस में उसको समर्पित करते हैं, क्योंकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा है दैट एक्स्ट्रा इज वेरी हेल्पफुल इन जीएस। तो हम एक्स्ट्रा पढ़ते भी हैं तो अपने हेल्थ के लिए। घी अगर गिरता है खिचड़ी में तो क्या प्रॉब्लम है भाई, मतलब समझा? एनीवन हु इज कंप्लीटली इलिटरेट इन हिंदी? Completely illiterate in Hindi? None. ये घी वाला एग्जाम्पल समझा क्या? तुमने एक्स्ट्रा एफर्ट लिया ज्योग्राफी में, उस एक्स्ट्रा एफर्ट से अगर न्यूट्रिशन आता है बॉडी में तो प्रॉब्लम क्या है लोगों को? दैट इज माई क्वेश्चन अगेंस्ट दोज हु आर सेइंग ज्योग्राफी इज वॉल्यूमिनस. Second thing, what is the scores in geography? This year also you have 310. Go and find out. Even though he was not my student because I was not teaching. So if with his own efforts he has got 310. And if it combines with my effort, 340 is not a distant dream. Last student who got very good marks was Junaid, rank 3. His cousin is in my last batch. अभी जो बैग लेने आया था ना लंबा वाला लड़का, उसी का कजिन था, वही उसको भेजा है. तो लास्ट बैच जो सबसे बड़ा नंबर रैंक लाया था वो भी मेरा ही स्टूडेंट था, वही लास्ट ज्योग्राफी का. मतलब समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ज्योग्राफी हमसे है? नहीं यार, मेरे इस तरह के चीज़ों को एरोगेंस मत लेना, बट there is a reality that optionals are very much dependent upon the dynamics of the teacher, because optional needs depth. GS is a superficial thing, any Tom, Dick and Harry can teach more or less, but optional बहुत deep जाता है. Today I was teaching Panchayati Raj and I was teaching 6 principles of Panchayati Raj. What is functional hierarchy? What is relay relationship in Panchayati Raj? So this is what is about optionals. It takes you to much greater depth. तो optional तो teachers के dynamics पे है ही, and I appreciate some of the optionals which have done so well because of the dynamics of the optional teachers. नहीं? They were my colleague when I had a big GS batch. खैर नाम नहीं लेंगे हम किसी का, क्योंकि YouTube लाइव चल रहा है और YouTube पे मुझे कोई भी गाली लिख सकता है ना. हाँ, तो क्या माइक ऑफ करके बोल दे, ये तुम सही आइडिया दे रहे हो. रुको, so it's not voluminous, that's one. Then scoring 310 is not bad marks. Is it bad 310? और इस साल जो this year the way question has been asked and the way it has completely fallen in line with my notes, and if my batches would have been writing the mains, they would have done that magic 340, 329. So I'm hoping, I'm expecting that maybe in the coming 2 years, geography can reach that level, remarkable level of 330, 340. उतना जा सकता है, because geography is a very structured subject, है ना? And geography is a very scientific subject. And science doesn't end with physical geography. A lot of people believe that geography will be scientific till physical geography. Then after human geography there is no science. Wrong. Even in agricultural geography we are using standard deviation methods. Even in population geography we will be using physics.
माइग्रेशन के लॉज को डील करते हैं। चलो क्वेश्चन पूछते हैं। देयर इज ए सिटी विथ 20,000 पॉपुलेशन, देयर इज ए सिटी विथ 5,000 पॉपुलेशन, विच सिटी हैज बिगर मास, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट, इसका मास ज्यादा हो गया ना, विथ 20,000 पॉपुलेशन, ये 5,000 पॉपुलेशन है। बताओ कौन ग्रेविटेट ज्यादा करेगा, हु विल हैव मोर पुल फैक्टर? सिटी विद ग्रेटर मास। तो फिजिक्स लग रहा है ना, तो एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स विल बी इवन इन ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड आई टेल यू वन वेरी interesting limerick meaning 5-line poem. The language of universe is geography. क्या बोला मैंने? The language of universe is geography. यूनिवर्स का लैंग्वेज ही ज्योग्राफी है। यूनिवर्स ज्योग्राफी के लैंग्वेज से बात करता है। द लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी इज फिजिक्स। मतलब ज्योग्राफी किसके लैंग्वेज में बात करेगा? ज्योग्राफी कम्युनिकेट्स इन विच लैंग्वेज? फिजिक्स में बात करता है। एंड द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिक्स, एंड द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज रीजनिंग एंड द वाइज माइंड। दैट वाज एग्जैक्टली द एसे दिस ईयर। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज रीजनिंग एंड वाइज माइंड, ऐसे कुछ आया था ना? हाँ, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। देखो यही ऐसे आया हुआ था। तो ये ज्योग्राफी पे जो पोएम लिखा हुआ है उससे ऐसे भी आया हुआ है। एंड इफ समवन अमंग यू वुड हैव बीन पार्ट ऑफ सम जीएस बैच प्रोबेबली वेयर आई टॉट फ्यू थिंग्स, वहां मैंने ये पोएम भी बोला था। द लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी इज मैथमेटिक्स फिजिक्स। एंड तो ऐसे भी देखो आया हुआ है। लास्ट ईयर देयर वाज ए एसे ऑन फॉरेस्ट रिसोर्स एंड इन्वायरमेंटल इशूज, ऐसा कुछ था। सो एवरी ईयर देयर इज एन एसे ऑन ज्योग्राफी। हर साल एक ऐसे तो ज्योग्राफी से रहता ही रहता है। तो डियर, इट्स वेरी स्कोरिंग बिकॉज ऑफ टू फैक्ट्स। ए, it is science, and even in human geography it doesn't cease to be science. But let me tell you, it's basic science, fundamental science. Don't take it as physics. डरना मत कि मैंने साइंस कह दिया। लैंग्वेज साइंटिफिक है, थोड़ा बहुत बेसिक एलिमेंट्री साइंस यूज होता है। फिजिक्स का कहीं कहीं लॉ यूज होगा, कहीं कहीं मैथमेटिक्स का लॉ यूज होगा, तो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। समझा? बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट है ये। दिस हाउ इट स्कोर्स, इसीलिए नंबर आता है। मैथ्स की तरह तो नहीं आता है, लेकिन साइंस की तरह मार्क्स आ सकता है इसमें। अब सुनो, देयर आर टू पार्ट्स इन दिस सिलेबस। वन इज क्लोज्ड एंडेड, another is open ended. Today is not the day when I will talk freely about geography. आज कोई वर्कशॉप नहीं है, a general interaction which was fixed by the management, so I thought तो एक होता है ना क्लोज एंडेड टॉपिक। जैसे मान लो देयर इज ए टॉपिक कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सुना होगा। नाउ इन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी योर आइडियाज, your knowledge will not work because you are not a scientist. Topics like cycle of erosion, your ideas, your opinion have no place because it is fixed. ये dead end है इसका। साइंस है, प्योरली साइंस है। अगर someone is asking you what is Newton's third law, तो would you have your opinion on it? नहीं ना। तो हाफ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी इज नॉट टू बी मेडल्ड विथ। मेडल्ड मतलब तुम उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे, वो फिक्स्ड है। आवर पेपर वन इज मोर और लेस फिक्स्ड। यू आर नॉट सपोज टू मेडल विथ एनीथिंग देयर। यू हैव टू राइट एज इट इज टॉट इन द क्लास, टेक एज इट कम्स। समझा? व्हाट आर द 5 criticism of Davis? That criticism have been drawn by other great professors. You are not supposed to draw criticism on the father of geomorphology, that is Davis. तुम नहीं कर सकते हो। तो ये जो सिलेबस है उसको क्या बोलेंगे? क्लोज एंडेड सिलेबस है।
यहाँ पे करंट अफेयर ये सब का कोई रोल नहीं है। यार डेविस के साइकिल ऑफ इरोजन में करंट अफेयर क्या होगा? तो हमारा 50% सिलेबस तो ड्रामा है ही नहीं, फिक्स्ड है, वो साइंस की तरफ फिक्स हो गया। नाउ 50% जैसे सम टॉपिक्स लाइक पॉपुलेशन प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब क्या हो गया? सेटलमेंट पैटर्न, ये सब क्या है? ओपन एंडेड। तो 50% syllabus will be open-ended and current affair knowledge will be required. समझा? But remember one thing, I am telling you in advance. A lot of people attempt to write more current affair and less of geography. That's wrong. You have to write more of traditional geography and current affair will be like putting on the cake. केक के ऊपर में पुडिंग करते हैं ना, इतना ही रोल है करंट अफेयर का। कोर ज्योग्राफी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? सो नेवर गेट कैरिड अवे बाय करंट अफेयर इन ज्योग्राफी फॉर हेवन सेक। 80% ज्योग्राफी विल बी ट्रेडिशनल एंड even if you learn today, even after 5 years, all the topics will remain relevant, except some of the policies, some of the data. कोई पॉलिसी चेंज हो गया, कोई डेटा चेंज हो गया तो ठीक है, नहीं तो ज्योग्राफी 5 साल तक सब रेलिवेंट है। तो देखो, स्कोरिंग भी है, करंट अफेयर का रोल बहुत बड़ा नहीं है। लुकिंग एट पेपर 2, एवरीवन विल बी शॉटिंग, अरे सब करंट आ गया। अरे कुछ करंट नहीं आया है, एक्सेप्ट 2, 3, 4 क्वेश्चंस। एवरीथिंग है। नाउ देयर इज ए क्वेश्चन ऑन जूट इंडस्ट्री, देयर इज ए क्वेश्चन ऑन कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन में है, ये कोई करंट नहीं है। तो यार ज्योग्राफी विल सेव यू फ्रॉम दिस होल ड्रामा ऑफ स्टडिंग करंट अफेयर एंड न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस, कोई जरूरत नहीं है। एंड देन आई एग्जिस्ट फॉर यू and I will be supporting with all the current affair material. So every batch will have revision of current affair material. समझा? I will be giving you a special booklets on environment so that you can trap 10 questions extra in PT. That is my promise, that is my commitment. 10 क्वेश्चन environment का, 8 से 10 क्वेश्चन हर साल हम ट्रैप कर लेते हैं। PT में या मेंस में? PT में एक बुकलेट देते हैं, अभी इस बैच को दिया नहीं था, लास्ट वाले को, उसका रिवीजन चल रहा है, लेकिन वो हर साल ट्रैप कर लेता है बुकलेट। अब देखो, थर्ड मेजर कंसर्न जो लोग कहते हैं स्टडी मटेरियल नहीं है, एंड दिस इज ट्रू ऑल्सो। देयर आर नॉट टू मेनी गुड बुक्स ऑन ज्योग्राफी, because geography books were written in 1970s. Even if you read Savindra Singh, he wrote that book in 1970s. Since then there has been no revision, and foreign authors are not concerned about UPSC syllabus. Why they should be? So we lack material, but don't worry, I am a voracious reader. I keep reading all the whatever new things are coming, I accommodate them, I make them very contemporary and put in your class notes. So even for study material you need not worry. I only refer to one book, Rupa Made Simple. It has 2 volumes. So एक book, 2 volume, that is the only reference book. Some NCERT, some old NCERT pages and some new NCERT pages. कुछ चैप्टर्स पढ़ना है ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी से, दैट इज द स्टडी मटेरियल आई विल सजेस्ट यू। देन आई मस्ट टेल यू आई हैव 3 बुकलेट्स ऑन एवरी टॉपिक। वन इज द ट्रेडिशनल बुकलेट विच इज एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द गुड बुक्स इन द मार्केट, जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं। सेकेंड विल बी योर कॉन्टेम्पररी, मतलब करंट अफेयर बेस्ड होगा। और थर्ड आई गिव वर्कबुक। वर्कबुक मतलब 50-60 क्वेश्चन का एक सेट देते हैं जिसमें तुमको प्रैक्टिस करना है ना, खुद से करना है। वो करके मुझे दिखा सकते हो कि मैंने ऐसा लिखा है, इस पे ये की पॉइंट्स आया, वो हम देखेंगे, लेकिन उसको हम करवाएंगे नहीं क्लास में।
आई विल बी टीचिंग द होल सिलेबस, लेकिन वर्कबुक देंगे जिसपे आपको काम करना है ना। उसका मटेरियल सोर्स कहाँ होगा? सोर्स होगा हमारा क्लास नोट प्लस जो बुकलेट देंगे, वहीं से निकाल के अरेंज करना है। ऑल राइट, नाउ फ्यू लाइन्स ऑन रोल ऑफ ज्योग्राफी इन योर सिविल सर्विसेज। क्या फायदा है ज्योग्राफी लेने से? सबसे बड़ा फायदा क्या है? पीटी। आई एम गिविंग यू one honest assessment about UPSC today and how it was in 2010. समझे? In 2010, UPSC aspirants were 1 lakh. 1 लाख UPSC के aspirant थे. And 15,000 will qualify for PT. तो कितना रिजल्ट आया? 15% आया ना? And then out of 15,000, 3,000 will qualify for mains, and from 3,000, 1,000 will be selected, or 1,100 will be selected, और कुछ कई 1,400 तक results आता था. तो out of 3,000, 1,400 will be selected. This was the story in 2010, 11, 12, 13, 14. After Corona, how many people appear thanks to the social media and the new heroes in our profession, in my profession. सोशल मीडिया ने बहुत लोगों को कहां से कहां कैसे कर दिया. तो उससे क्या हुआ? ये बहुत बड़ा मार्केट बन गया है यूपीएससी, और हर आदमी यूपीएससी दे रहा है, बिकॉज वो सोशल मीडिया के हीरो पहुंच गए घर 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 घर, एक एक हाउस होल्ड में चले गए वो. अब वो आकर के सोफिस्टिकेटेड बन के बोलते हैं कि बहुत आसान है, अपने कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए. अब वो तो गॉस्पेल्स तो दे दिए, वहां माता जी सुनी, हाँ, अपने बच्चा को बोला तू भी तैयारी कर, बाप देख रहा है मोबाइल, तू तैयारी कर, देख आसान है, बोल रहे हैं ना सर तो चढ़ा दिए पूरा मार्केट को. अब मार्केट में चारों तरफ से 20 लाख लोग आ गए. नाउ व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम इज दैट 15 lakh people will be appearing for PT alone. 15 lakhs. There is a new estimate coming up now. So from 1 lakh there is a quantum jump, 15 times increase in the appearance itself. And how many will be qualifying PT? 12,000. समझा? वो रिजल्ट तो कम रहा है और इधर एस्पायरेंट्स बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब तुम ऐसे सोचो कि अगर 15 लाख में 2,000 का भी फ्लूक चल गया, तो उस दिन उसके ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब सही जगह पे हो और वो जय बजरंगबली के शॉट्स लग गए, तो 2,000 सीट तो वही 3,000 कैप्चर कर लेगा. वो होगा ही होगा. जब भी तुम इस तरह का बेस बढ़ा दोगे एस्पायरेंट का, तो फ्लूक्स का पॉसिबिलिटी क्या होता है? बढ़ जाता है. तो पीपल क्वालिफाइंग फॉर मेंस, देयर क्वालिटी हैज नॉट कंप्लीटली, बट दैट क्वालिटी हैज डिटेरियोरेटेड विद टाइम. वो लेवल मेंस का नीचे गिर गया है. एंड दोज हु आर स्कोरिंग 50%, दे आर अमंग टॉप 10. पता है ना? ओवरऑल 50% मार्क्स आया तो यू आर इन टॉप 10. दिस अरे मान लो कि 52 होगा यार, 53 होगा, अब मेरे पीछे मत पड़ जाना कोई, किस की औकात क्या है, ये कैसे बोला. ये तो सोशल मीडिया से हम इतने डरते हैं ना कि हम यूट्यूब चैनल भी, मेरा भी है, हम उसमें बस डालते हैं यहाँ पे मैं रोटी बना रहा हूँ, देखो हाउ टू मेक हलवा, हाउ टू मेक चाय. ज्योग्राफी तो हम प्रणाम कर ले भाई. सोशल मीडिया पे ज्योग्राफी पढ़ाने की मेरी औकात नहीं है. कोई लिखेगा हाँ तू सच कह रहा है. आई नो इट. ओके, तो ये क्या बता रहे थे? सोशल मीडिया. हाँ, तो the real challenge is in your PT.
पीटी में जो तुम्हारा चैलेंज है ना, अब पीटी के बैरिकेड को कैसे तोड़ोगे बताओ? विच सब्जेक्ट? हाउ मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी? 8, 10, 12 एंड एवरीवन कैन डू दैट. कोई मैजिक नहीं है उस 10 क्वेश्चंस में. वो 10-12 क्वेश्चंस तो कोई भी कर दे रहा है, तो वहां से एडवांटेज तो मिलेगा नहीं. फिर कहां मिलेगा? हिस्ट्री में अगेन यू हैव 10-12 क्वेश्चंस. उसमें से 5 क्वेश्चंस यू कैन डू, 5 क्वेश्चंस इवन टीचर्स कैन नॉट डू, और वो टीचर से भी नहीं हो रहा है. एंड देन यू विल हैव टू रीड 20 बुक्स, पता नहीं कौन कौन सा बुक्स, देन यू कैन सॉल्व. तो बहुत डिफिकल्ट है टू स्कोर इन हिस्ट्री एट द सेम टाइम. And that is what I am suggesting to my core students also. It's not for you, it's for them also. Then what remains? Finally you remain with economy and current affair. So that's one segment. But that captures around 20 questions, 25 questions, that's it. उसकी total औकात 20 क्वेश्चन की है, 25 क्वेश्चन की है. अब आते हैं ज्योग्राफी पे. तो ज्योग्राफी combined with environment, even though I will not like to separate environment from geography, but geography combined with environment, with some science questions, typical science questions. अब photosynthesis आएगा तो ज्योग्राफी भी तो photosynthesis पढ़ाता है ना यार, तो उसको हम साइंस क्यों मानेंगे? अब देयर वाज ए क्वेश्चन ऑन लॉ ऑफ द सी. देखो तो लॉ ऑफ द सी पे क्वेश्चन आया. आई हैड टॉट कैटेगोरिकली इन ओशनोग्राफी that question law of the sea was taken by the IR person. IR में लोग लेके चले गए, हम तो देखते ही रह गए, क्या कर रहे हैं हम पढ़ाए हैं इसको, आप IR में ले गए इसको. ऐसे ही होता है ज्योग्राफी के साथ. There was a question on geomagnetism, वो साइंस वाले लेके चले गए. अब जियोमैग्नेटिज्म हमने पढ़ाया था जियोमॉर्फोलॉजी में. इस साल तुम देखो देयर वाज ए क्वेश्चन ऑन इंसोलेशन, नहीं, अब उसमें सिर्फ लिखा है इंफ्रारेड, लेकिन क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, वाटर वेपर से रिएक्शन. अब ये साइंस का क्वेश्चन कैसे होगा? ये टिपिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन लोग साइंस में लेके चले गए. PS वेव आ गया, क्वेश्चन में लिखा है सिस्मोग्राफ, लोग साइंस में लेके चले गए. तो अंत में ज्योग्राफी का क्या डिक्लेरेशन आता है मालूम? कि ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन आया. यही आता है ना. मतलब ज्योग्राफी टुडे फॉर एवरीवन इज व्हाट? इफ देयर इज ए क्वेश्चन ऑन मैपिंग, वो भी यूक्रेन का मैप आ गया तो हो गया वो IR, ले वो भी चला गया. तो सम ऑफ द मैप्स प्लस क्या ओशियन करंट आ गया तो ज्योग्राफी, क्योंकि उसको कोई ले नहीं सकता है. तो जो बचा खुचा रह गया क्वेश्चन, उसको लोग ज्योग्राफी 8 लिख दे रहे हैं. लेकिन ये सच नहीं है. ये बहुत ही दिस हैज डन द रियल डैमेज. सी, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन लास्ट ईयर, वेटलैंड एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू अर्बन फ्लड्स, और वेटलैंड का डिस्ट्रीब्यूशन. अब बताओ डिस्ट्रीब्यूशन वेटलैंड का ये कहाँ का क्वेश्चन है? ये साइंस टेक का क्वेश्चन है क्या? ये तो ज्योग्राफी का टिपिकल क्वेश्चन है कि वेटलैंड का डिस्ट्रीब्यूशन. अब बेचारा ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन भी ना पढ़ाए तो क्या पढ़ाए? तो देखो रियलिटी क्या है कि यू हैव सम 45 क्वेश्चंस दिस ईयर आल्सो फ्रॉम ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड ए बिट ऑफ साइंस कंबाइंड. 45 क्वेश्चंस. सो योर की टू सक्सेस in PT, it lies with only one subject, that's geography. I think there is a realization of this fact. So I am seeing that the number of students taking geography are more, and I am seeing my batches growing and classes packed and a lot of online admissions are coming. So मुझे लग रहा है कि geography has started picking up rapidly. And people have started realizing with, I should be credited, 2 साल से हम भी भाषण दे रहे हैं चारों तरफ कि भाई देखो इतना क्वेश्चन आया, इतना क्वेश्चन आया. GS में भी जाके थोड़ा बहुत प्रचार कर देते हैं कि देखो ज्योग्राफी से इतना क्वेश्चन आया, इट्स ए रॉन्ग थिंग टू, बोल देते हैं हम जा करके. लेकिन फिर भी देयर इज एन एंटीथेसिस, वो मुझे फील होता है. बट आई रियली वांट यू टू परफॉर्म, बिकॉज
इतना बड़ा सब्जेक्ट और ऐसा लोग परसेप्शन बना लिया। तो what I am doing in my batches, I am doing lot of emotional investment with them. And with this batch and the old batches, I am going on a geography trip also. I am taking them on a geography trip also. Because I want them to feel closer to me and closer to the subject. उसके मेमोरीज में थोड़ा होना चाहिए कि भाई देखो, तुम जिस चीज में इमोशनल इन्वेस्टमेंट करोगे वहां से रिजल्ट आता है। अगर इमोशंस नहीं है ना अंदर में तो वो चीज कुछ होगा नहीं जिंदगी में। सो डेस्टिनी ऑल्सो एवेट्स योर इंटेंशन। नहीं समझा? अंग्रेजी नहीं समझ में आता होगा तो क्या करोगे? इस जनरेशन का ये भी प्रॉब्लम है, मतलब आप लोग का नहीं है लेकिन इस जनरेशन का प्रॉब्लम है, उसको अंग्रेजी भी ढंग से समझ में नहीं आती है। मैंने क्या बोला अभी? एक इंसान का भाग्य क्या होता है, एक इंसान का डेस्टिनी क्या होता है, उसका अपना इंटेंट होता है। इफ यू हैव ए स्केप्टिसिज्म अबाउट योर ओन डिसीजंस, you can never achieve your goal. If you are skeptical about your own, मेरा होगा कि नहीं यूपीएससी, let's take a chance, let's see, इन लोगों का तो कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इंटेंट को स्ट्रॉन्ग करो कि आई एम बॉर्न फॉर ज्योग्राफी, मेरा जन्म हुआ है ज्योग्राफी के लिए। ये वाला इमोशन अंदर में होगा तभी अच्छा करोगे। देन यू विल लर्न लाइक विवेकानंद। और मेरा भी स्टेटस रामकृष्ण परमहंस का होगा। नहीं, इतने बड़े लोगों का नाम लिया। तुम तो विवेकानंद हो सकते हो लेकिन हम कभी नहीं हो सकते, मुझे पता है। तो ये तुम लोग को 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। और कोई क्वेश्चन हो मन में तो पूछो। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग गो अहेड। कोई क्वेश्चन नहीं है? कितना टाइम हो गया? 5:30 हो गया। लेट भी आया हम थोड़ा। I will be having a full-fledged program on geography on 2nd November। ठीक है ना? तो you can join me on 2nd November। 27th को तो हम बैच शुरू नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों से मिलते हैं 2nd नवंबर को, ठीक है ना? और कुछ पूछना तो है नहीं आप लोगों को? ज्योग्राफी ज्योग्राफी ट्रिप पे कहाँ जा रहे हैं? चलना है ट्रिप पे? हम लोग एक ज्योग्राफर कहाँ जाएगा यार? पहाड़ पे ही ले जाएगा ना, डिस्कोथेक तो ले जाएंगे नहीं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन, ग्लैमर, ये सब ज्योग्राफी में कहाँ है? तो वो ले जाएंगे हम उधर, उन लोगों को दिखाएंगे कि लेसर हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो ज्योग्राफी प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छा होता है। देन क्या लाइफ है? लाइफ इज ऑल अबाउट स्मॉल स्मॉल मेमोरीज। What is life? Collection of small memories। समझे? इसलिए छोटी छोटी मेमोरीज को कलेक्ट करो, यही लाइफ है। और जो हम तुमको ये प्रीच कर रहे हैं ना कि लाइफ क्या है, ये लाइफ समझने के बाद कर रहे हैं। चलें? थैंक यू, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। कल मिलते हैं। आपसे तो मिलेंगे कब? 2nd November। We fix our destiny।